Yes, hello students. In last lecture, we had begun our studies of trigonometric ratios in a generalized way. That means we started our learning of trigonometric functions. Functions, that means in generalized way we will just learn trigonometric ratios. And we had defined two basic trigonometric functions, that is a sine and cosine, from a unit circle. That in last lecture we learned that if we draw a unit circle and let P be any point on the unit circle, and if we connect this point P with the origin O, and if it subtends an angle x radian in the counterclockwise direction, then obviously this arc length will also be x units. Okay, then if it is subtending an angle of x at the center by this point P, then x coordinate of point PA is equals to cos x, and y coordinate of point P, that is a B, is equals to sin x, and for it is true for any x that we have shown in last lecture. And from that also we have got values of some trigonometric of sine and cos of these two trigonometric functions for more than 90 degrees. That means in last lecture, we have seen that by point A the angle subtended and the center is 0, and if coordinate of a point represents cos and sine of that angle, so here the angle subtended by A at the point is 0 radian. So here 1, that is the sine 0 is equals to, cos 0 is equals to 1 and sine 0 is equals to 0. X coordinate represents cos of that angle and y coordinate represents the sine of that angle. Likewise, we just consider angle AOB. All these are quadrantal angles, that is pi by 2, then AOC pi, AOD in the anti-clockwise direction, that is a 3 pi by 2, and AOA, that is a 1 complete revolution. The angle subtended at the center will be 2 pi, and we had written some values, that means it was like this. And all angles I have written in terms of radian. Cos 0 is equals to 1, sin 0 is equals to 0, then cos pi by 2 is equals to 0, sin pi by 2 is equals to 1, cos pi is equals to minus 1, sin pi is equals to 0, cos 3 pi by 2 is equals to 0, sin 3 pi by 2 is equals to minus 1, and last one was cos 2 pi is equals to 1 and sin 2 pi is equals to 0. These are all quadrantal angles. Okay, and in the last lecture we had find the value. All these values are pi, 3 pi, these are more than 90, that is more than for a rectangle, so for obtuse angle, so we can say, and all these are representing obtuse angle, and for all this obtuse angle we are finding the values of cos and sine. Okay, so it was in the last lecture. Now we will move ahead from the observation of this unit circle only. We will have a two new important concept that I will write here. Yes, two new important concept. That means here I am drawing this figure separately, and I am having a rotation of clockwise and anti-clockwise both, and for these two situations I am drawing two separate figures. So unit circle, no problem, both are unit circle. Yes, origin y dash, here a point P. If I connect with the origin, and if let it be x, okay, here PAB. Also we know that
A is equals to cos x and B is equals to sin x. Now here this much is a x rotation. Okay, now it's a unit circle. For unit circle, if I from point P, if I am making a one complete revolution in the anti-clockwise direction, that is one complete revolution, it is a 2 pi radian. So if I move from point P in the anti-clockwise direction for one complete revolution, then I will come again to the same point P. But at that time, the total revolution from the positive axis of x, positive direction of the x-axis will be what? Yes, first I move to the point that is the x units. Then from P, I am making one complete revolution in the anti-clockwise direction. That means I am moving further 2 pi radian in the anti-clockwise direction. That means total movement will be what? X plus 2 pi. So the angle subtended, if I am making one more complete revolution from point P in the anti-clockwise direction, then my total angle subtended at the center will be x plus 2 pi. Likewise, if I am just going for another revolution, that means I am working one more complete revolution, then total angle subtended at the center will be what? X plus 4 pi. Yes, likewise you can go like this, x plus 6 pi. That means for rotation of x plus 2 pi, x plus 4 pi, x plus 6 pi, I will come to the same point P. Same way, if I go for a anti-clockwise direction, clockwise direction, here in this case, I am moving anti-clockwise direction. Now the same thing if I see for a clockwise direction, here O, x, x dash, y, y dash, here. Let this point be P. I am connecting this point with the center. Let this be x radian, so it will be obviously x radian. Okay, let the coordinate of point be AB, and here A will be cos x and sin x. So here what I am doing, first I am making a anti-clockwise movement of x units. I am just coming to the point P, and from point P, now I am making a रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन. दैट मीन्स यहां से मैं राइट हैंड साइड में पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा हूं, एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा हूं. दैट मीन्स इसका नेट, उसका एंगल सबटेंड एट द सेंटर क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट में जा रहा हूं एक्स रेडियन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट मीन्स ये पॉजिटिव एंगल, फिर 2 पाई रेडियस में क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव. दैट मीन्स ये क्या होगा, यहाँ पे नेट रोटेशन, एक तो फर्स्ट एक्स तो है ही, दूसरा क्या होगा -2 पाई प्लस एक्स. दैट मीन्स एक्स गया, वापिस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पूरा रोटेशन किया, एक पूरा रोटेशन यानी कि 2 पाई रेडियन. तो ये टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी -2 पाई प्लस एक्स. अगेन मैं एक कंप्लीट रोटेशन के बाद मैं पॉइंट पी पे आया हूं. आई एम जस्ट अगेन मेकिंग अ सेकंड रोटेशन ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन. तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट इज और 2 पाई रेडियन में क्लॉकवाइज जा रहा हूं यानी मैं और 2 पाई में नेगेटिव जा रहा हूं. दैट मीन्स ये होगा -4 पाई प्लस एक्स, लाइकवाइज -6 पाई प्लस एक्स. नाउ इन दोनों के केस को जो मेरे को जनरलाइज वे में समझाना है, तो ये पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी वो एक्स एंगल का बेसिकली एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, अगर पी पॉइंट से मैं वन कंप्लीट रिवोल्यूशन एक्सटेंड करता हूं, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन, तो जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर यानी कि एक्स के लिए एक्स प्लस 2 पाई एंगल जो सबटेंडेड होगा तो उसके लिए भी पॉइंट पी होगा, एक्स प्लस 4 पाई तो उसके लिए भी जो पॉइंट होगा वो पी. दैट मीन्स अगर एक्स में मैं पाई का इवन मल्टीपल ऐड करता जा रहा हूं तो मैं उसी पॉइंट पे वापस आ रहा हूं. लाइकवाइज जैसे पी के लिए मैं फर्स्ट एक्स रेडियन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूं, फिर पाई का इवन मल्टीपल दैट इज 2 पाई 4 पाई, तो एक्स प्लस 2 पाई तो अगेन मैं पी पे आऊंगा, प्लस 4 पाई
तो पी पे ही वापस आऊंगा 6 पाई। तो मैं एक्स प्लस एक्स में अगर मैं पाई का इवन मल्टीपल ऐड कर रहा हूं तो पॉइंट पी पे आऊंगा। दैट मीन्स जो एंगल सबटेंडेड है एक्स रेडियन सबटेंडेड है, या तो एक्स प्लस 2 पाई है या तो एक्स प्लस 4 पाई है। इन सभी एंगल सब के लिए जो मेरी पॉइंट है वो पॉइंट पी ही रहेगी। दैट मीन्स इन सब एंगल के लिए उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ए और बी ही रहेंगे। तो उसके ऊपर से हमको कुछ जनरल फॉर्मूला बनानी है। सेम में यहाँ पे भी यही रहेगा। ओरिजिनली पी है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स रेडियन का एंगल दैट मीन्स मूव करता है, तो एक्स रेडियन का वो एंगल सब्टेंड करता है। उसके बाद मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पूरा रोटेशन लेता हूं, एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता हूं। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कि 2 पाई रेडियन, बिकॉज यहाँ पे जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, और यहाँ पे वन कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 1 लेना है। दैट इज वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। एंड वी आल्सो नो दैट इन टर्म्स ऑफ रेडियन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन रिप्रेजेंट्स 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज गया, यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। क्लॉकवाइज किस तरह से जा रहा हूं कि फर्स्ट पी को मूव करने के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज जा ही रहा हूं, लेकिन पी पे पहुंचने के बाद मैं अब जो रिवोल्यूशन दे रहा हूं या जो मूव कर रहा हूं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट इज 2 पाई, और क्लॉकवाइज दैट मींस -2 पाई रेडियन कर रहा हूं। तो यहाँ पे -2 पाई प्लस एक्स -4 पाई प्लस। तो इन सब रिवोल्यूशन के लिए मैं किस पॉइंट पे वापस आऊंगा, तो सेम पॉइंट पी पे आऊंगा। दैट मीन्स अगर सेंटर पे सब्टेंड किया होगा हुआ एंगल एक्स होगा, -2 पाई प्लस एक्स होगा, -4 पाई प्लस एक्स होगा, या -6 पाई प्लस एक्स, या इसका कोई भी मल्टीपल होगा, तो उन सब के लिए मैं अगेन पॉइंट पी पे आऊंगा। दैट मीन्स उनके लिए इन सब एंगल के लिए उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ए और बी रहेंगे। और ये ए और बी क्या है, तो कि cos x एंड sin x। तो यहाँ पे मैं इन चीजों से मैं क्या लिख पाऊंगा, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली a इज इक्वल टू cos x है, तो सिमिलरली cos 2 पाई प्लस एक्स। यहाँ पे क्या है, x मैंने किया और x रेडियन का एंटी क्लॉकवाइज में मैंने मूवमेंट किया, पॉइंट पी पे आया, पॉइंट पी पे मूव करके मैं वापस में पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट मींस x प्लस 2 पाई कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई प्लस एक्स लिखा है। ओके, तो यहाँ पे 2 पाई प्लस एक्स लिखा, तो मैं पॉइंट पी पे ही वापस आया। तो अगेन x के लिए अगर a इज इक्वल टू कॉस एक्स है, उसका x कोऑर्डिनेट a इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो x प्लस 2 पाई के लिए अगेन पॉइंट p ही आ रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट यानी कि cos ऑफ x प्लस 2 पाई वो क्या रहेगा, सेम a। बट a इज इक्वल टू वॉट, तो यहाँ पे हमारे पास है cos x। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट साइन ऑफ 2 पाई प्लस x, क्योंकि x तो रोटेशन किया है तब उसका y कोऑर्डिनेट साइन x है, लेकिन उसमें अगर 2 पाई में ऐड करता हूं तो अगेन सेम पॉइंट पे आता हूं, तो उसके लिए भी उसका y कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, दैट इज b ही रहेगा। लेकिन इस बार रोटेशन क्या है, तो x प्लस 2 पाई, लेकिन b क्या है, तो साइन x, तो ये हुआ साइन x। सेम में सेकंड रोटेशन में भी यही होगा, तो cos 4 पाई प्लस x, वही सेम पॉइंट p आया, उसका x कोऑर्डिनेट a है, a दैट इज नथिंग बट cos x है। उसी तरह से साइन 4 पाई प्लस x इज इक्वल टू, मैं उसी पॉइंट p पे आया, दैट इज उसका y कोऑर्डिनेट दैट इज द साइन होगा वो b, लेकिन b इज इक्वल टू व्हाट, तो दैट इज द साइन x। और यही चीज हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, दैट मींस यहाँ पे cos ऑफ यस, यहाँ पे फर्स्ट x एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो यस a इज इक्वल टू cos x। इट इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ cos एंड sin। b इज इक्वल टू sin x। ओके, तो यस x के बाद मैं एक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज करूंगा, दैट मींस -2 पाई x ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो मैं उसी पॉइंट p पे आ रहा हूं। अगर जो एंगल सब्टेंड होता है यूनिट सर्कल पे, कोई भी पॉइंट जो होता है, जो वो सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड करता है, उस एंगल का cos दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे यही चीज, जब मैं इनिशियली मैंने x का मूवमेंट किया, उसके बाद वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन किया, तो मैंने -2 पाई, तो उसके बाद में वही
अगेन घूम के वही पॉइंट पे P आया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही मिलना चाहिए। सो दैट मींस उसका कोऑर्डिनेट क्या है A, बट A क्या था तो इनिशियली वो cos x था। सिमिलरली साइन के लिए भी आप लिख सकते हो साइन माइनस 2π प्लस एक्स इज इक्वल्स टू B, दैट इज साइन x cos माइनस 4π प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यस अगेन वही उसी पॉइंट पे आया P, सो A इज इक्वल्स टू cos x और साइन माइनस 4π प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यस उसी पॉइंट का है, वो वाई कोऑर्डिनेट है साइन, तो साइन एक्स। तो इन दोनों के ऊपर से हम एक जनरल चीज बनाएंगे। अगर कॉस और साइन के लिए किसी भी एंगल के कॉस और साइन किसी भी एंगल की कॉस और साइन वैल्यू के लिए अगर मैं पाई का इवन मल्टीपल ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूं तो उसकी वैल्यू चेंज होती नहीं है। तो यहां पे ये चीज दोनों चीज को मिला के यस वी कैन राइट इन जनरल दैट इज अ cos 2n pi plus x is equals to cos x n belongs to z, that means यहाँ पे n अगर कोई इंटीजर है n is equals to 1 तो cos 2π plus x that is a cos x, n is equals to -1 तो cos minus 2π plus x is equals to cos x, that means यहाँ पे x क्यों है, अगर मैं पाई का इवन मल्टीपल ऐड करता हूं तो cos की वैल्यू चेंज नहीं होती, x के लिए जो होती है वही वैल्यू मुझे मिलती है। सेम वे साइन के लिए साइन 2n pi plus x is equals to sin x where n belongs to z। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमको याद रखना है। दैट मीन्स साइन और cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 2π रेडियन पे रिपीट्स होती है। दैट मीन्स अगर वो खुद ब खुद वही वैल्यू वापस आती है, यानी सपोज अगर cos π/6 की जो वैल्यू है तो cos 2π प्लस π/6 के लिए भी वही वैल्यू आएगी, या तो cos माइनस 2π प्लस π/6 के लिए भी वही वैल्यू आएगी। इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। अगर ये लिखना तो ये चीज में बहुत अच्छी तरह से, नाउ वी नो दैट दिस साइन π/6 साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है तो 1/2, तो यहां पे साइन 2π प्लस π/6, ओके, दैट मीन्स साइन 13π/6 उसकी वैल्यू भी यस यहाँ पे π/6 में 2π ऐड किया है तो साइन की वैल्यू π/6 जीती, दैट इज 1/2। और ये एंगल कहां 180 के 90 के कहा भी बहुत ही बड़ा एंगल है, दैट मीन्स मोर देन 360 का एंगल है, एक्चुअली इट्स 390 डिग्री, दैट मीन्स साइन 390 डिग्री की वैल्यू 1/2। ओके, सो इस तरह से हम आगे यूज करेंगे। तो जस्ट ये जस्ट मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है उसके ऊपर से इसका किस तरह से यूज होता है वो दिखाने के लिए ही जस्ट मैंने ये लिखा है, बिकॉज वी आर नोइंग द वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एक्यूट एंगल ओनली, दैट मीन्स 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की ही वैल्यू हम जानते हैं। नाउ बाय यूजिंग ऑल दिस टेक्निक्स, और इसमें और सारी चीजें भी ऐड होगी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कोई भी एंगल के लिए अप टू 360 डिग्री और मोर देन 360 डिग्री कोई एंगल के लिए हम उसका फाइंड कर सकते हैं। इसका यही एक एग्जांपल है, साइन π/6 दैट मींस साइन 30 डिग्री, उसका मुझे वैल्यू पता है 1/2, और यहाँ पे मैं साइन 2π/π/6 दैट मींस 2π यानी 360 प्लस 30 दैट इज 390 डिग्री, उसकी वैल्यू भी मुझे 1/2 मिल रही है, वो चीज हम एस्टैब्लिश कर पाए। दैट मींस ये साइन 390 डिग्री की वैल्यू ये चीजें है। ओके, इट्स जस्ट अ सैंपल ओनली, बट इसमें बहुत सारी चीजें हमको और करनी है, पर इसका यूज हमको करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है और आगे यूज आएगी। उसका मतलब ये होता है कोस और साइन की वैल्यू एवरी 2 पॉइंट रेडियन पे रिपीट होती है, दैट मींस वही वैल्यू वापस आती है। जो एक्स के लिए वैल्यू थी उसमें पाई के इवन मल्टीपल्स ऐड करते जाओ या सब्सट्रैक्ट करते जाओ तो हमको वही वैल्यू वापस मिलती है, वो चीजों को ध्यान रखना है। और उसके लिए मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, वो चीज आप ध्यान से देख लीजिए, और ये एक इम्पोर्टेंट है, वो चीज ध्यान रखना है। और इसी के ऊपर से हमको और एक चीज भी पढ़नी है, दैट वी विल सी। ओके, दैट इज एन आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की चीजें हम पढ़ रहे हैं, इट इज मोर
ऑन जनरलाइज दैट मीन्स हम अब जनरलाइज कोई भी वैल्यू अब ले सकते हैं, उस तरह से हम पढ़ रहे हैं. सो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर दिस ऑल दिस थिंग्स, बेसिक थिंग्स एंड फंडामेंटल आपके क्लियर है, तो आगे आपको इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी. इट विल बी एडवांटेजेस फॉर यू बिकॉज trigonometry plays an important part for 11th and 12th both mathematics. So इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी ले रहा हूँ और हर एक चीज को थोड़ा डिटेल से आपको समझा रहा हूँ. ओके, yes, as I said earlier, we are going to learn some more characteristics of a trigonometric function in a general way. Just right now we learned that cos of 2n pi plus x is equals to x where n belongs to z, and sine of 2n pi plus x is equals to sin x n belongs to z. That means sin और cos फंक्शन की वैल्यूज एवरी 2 पाई रेडियंस पे रिपीट होती है, वो चीज देखा. अब वापस जैसे मैंने बताया, हमको जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पढ़नी है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द यूनिट सर्कल ओनली. सो एवरी टाइम जस्ट वी विल कीप यूनिट सर्कल इन आवर माइंड एंड ऑल्सो we'll draw a unit circle repeatedly for explaining all the general concept, because basic sine and cos, definition of a sine and cos came from the unit circle only, and the rest of the functions, trigonometric functions, are the ratio of sine and cos. So if you understand sine and cos in general thoroughly, then rest of the things are comparatively easier. Okay, now here we can see that, okay, here एक मैं ये ले रहा हूं, यहां पे आई एम जस्ट कंसिडरिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो हमको पता है ये 0 रेडियन है, यहां पे आएगा पॉइंट बी पे तो पाई बाय 2 रेडियन, पॉइंट सी पे आएगा तो पाई रेडियन, पॉइंट डी पे आएगा तो 3 पाई बाय 2 रेडियन. वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद तो वापस 2 पाई. फर्दर अगेन मैं एक से ज्यादा मूवमेंट कर रहा हूं. वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद अगेन मैं आई एम जस्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो 2 पाई एक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, सेकंड रिवोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया, सेकंड रिवोल्यूशन यहां तक करता हूं, दैट मींस 2 पाई तो किया है एक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन प्लस पाई बाय 2. सो 2 पाई प्लस पाई बाय 2. तो अगेन जब मैं ऑल दिस आर नथिंग बट दिस आर द एंगल सबटेंडेड इन द सेंटर. सो अगेन 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड करूंगा तो ये होगा 5 पाई बाय 2, ये होगी 3 पाई बाय यहां पे 7 पाई बाय 2, 4 पाई. yes, it is second complete revolution. Again just I just go on like this, I'm just going for third revolution, then it will become a 9 pi by 2, just 4 pi plus pi by 2. It will be a 5 pi, that is point C here, and here 11 pi by 2, and it's a 6 pi. Now what does it mean? ये अगर मैं कंप्लीट में इस तरह से मैं रोटेट करता रहता हूं तो एंगल सब्सटेंडेड बाय पॉइंट एट द सेंटर विल बी आइदर 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई. जब इस सब एंगल में वो इस सब चीजों के लिए जो पॉइंट है वो पॉइंट ए कहा जाएगा. दैट मींस ए जो सेंटर पे एंगल सब्टेंड कर रहा है वो आइदर 0 जब बिगिन किया वो वन पर पूरा रेवोल्यूशन किया 2 पाई रेडियन, तो वो भी अगेन उसी पॉइंट पे है तो 2 पाई रेडियन सब्सटेंड हुआ. वन वापस दूसरा पूरा एक्सटेंड किया, पूरा किया तो 2 पाई प्लस 2 पाई दैट इज 4 पाई, वो एंगल सब्सटेंड किया. जस्ट वी कैन हैव एज मेनी रेवोल्यूशन एज पॉसिबल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट मींस वी हैव मेनी different angles subtended at the center by this, but by this point A, the angle subtended at the center will be 0, 2 pi, 4 pi or 6 pi. Likewise, the angle subtended by point B at the center, that is B को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो ये फर्स्ट राउंड में पाई बाय 2, अगेन वापस 2 पाई तो ये होगा 5 पाई बाय 2. दैट मींस अगेन 2 पाई one polar complete revolution, so it will become 9 pi by 2. So angle subtended by point B at the center is either pi by 2 or 5 pi by 2, 9 pi by 2. We know that at every 2 pi interval, at 2 pi radian, the point we will come on the same point, because 2 pi radian में one complete revolution होता है. तो अगर किसी पॉइंट से मैं बिगिन करता हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता हूँ तो मैं उसी पॉइंट पे 2 पाई रेडियन के बाद उसी पॉइंट पे आता हूँ और उसमें रोटेशन मेरे बढ़ते रहते हैं. एक पूरा करूंगा तो 2 पाई उसमें ऐड हो जाएगा,
दो तो पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करता हो तो 4 पाई, दैट मीन्स वो एंगल इतना वो सेंटर पे सबस्टेंड कर रहा है, इस तरह से हम कहेंगे। तो यहाँ पे द एंगल सबस्टेंडेड बाय पॉइंट बी विल बी आइदर पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। सेम वे सी के द्वारा द एंगल सबस्टेंडेड द सेंटर विल बी आइदर पाई, 3 पाई, 5 पाई, इट इज लाइक दिस। और या डी से द एंगल सबस्टेंडेड बाय पॉइंट डी इज 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 और 11 पाई बाय 2, इट विल लाइक दिस। और इस तरह से हुआ, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज का देखा। उसी तरह से अगर हम क्लॉकवाइज का देखेंगे तो क्लॉकवाइज में ये 0 रेडियन, ये होगा माइनस पाई बाय 2, ये होगा माइनस पाई रेडियन, ये होगा माइनस 3 पाई बाय 2 रेडियन, ये माइनस 2 पाई 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगेन आई एम जस्ट कीपिंग द रिवोल्यूशन इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो माइनस पाई बाय 2 अगेन मैं ऐड करूंगा तो माइनस 5 पाई बाय 2, ओके। यहाँ पे माइनस 3 पाई, माइनस 7 पाई बाय 2, yes, minus 4 pi. Again, I just moving like in the clockwise direction, so it will be minus 9 pi by 2. It's minus 5 pi, or ये minus 11 pi by 2, minus 6 pi. Likewise, just we can have as many rotation in the clockwise directions. That means we can associate any real number with this all angles. Okay, here the angle subtended by point A and the center will be either 0, minus 2 pi, minus 4 pi, or minus 6 pi. The same way, the angle subtended by point D at the center will be either minus pi by 2, minus 5 by 2, minus 9 pi, likewise minus C and okay B. Okay, now from this point we have to observe 2 points. Okay, that we will have to look that thing, and from that observation we will have one rule also. Here we also know that any point on the unit circle, if we connect that point with the center of the circle, then the x coordinate of that point on the circle is nothing but it's the cos of the angle subtended by that point at the center, and y coordinate of the point will be nothing but the sine of the angle subtended by that point at the center. So these are okay. तो यहाँ पे हमको पता है ये sin cos 0 is equals to 1, sin 0 is equals to 0, cos pi by 2 is equals to 0, or cos 5 pi by 2 is equals to 0, or cos 9 pi by 2 is equals to 0. It is like this. Or sin pi by 2 is equals to 1, sin 5 pi by 2 is equals to 1, and sin 9 pi by 2 is equals to 1. These are the things. ये आप चीजें हो सेम में यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमको एक दो पॉइंट का ऑब्जर्वेशन करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यस, ये 4 from figure, four points B and D. B क्या है? 0, 1 and D 0, minus 1. यहां पे देखेंगे B एंड D, B एंड D में x कोऑर्डिनेट क्या है? तो 0। इसका मतलब, या बाकी तो नहीं है, इन दोनों में ही x कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ? जब एंगल पाई बाय 2 होगा, 3 पाई बाय 2 होगा, 5 पाई बाय 2 होगा, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 होगा, तब इन सब एंगल के लिए cos की वैल्यू ऑलवेज 0। ओके, नाउ सेम में बेटा यहां पे हम देखेंगे बी एंड डी। तो यहाँ पे बी एंड डी में दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। दैट मीन्स जो एंगल बी और डी के द्वारा जो एंगल सबटेंडेड द सेंटर विल बी, दैट हियर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड डी बोथ आर 0। दैट मीन्स द cos of the angle subtended by these 2 points at the center will be 0. Here angle subtended by these 2 points for a clockwise direction rotation is either minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus pi by 2, minus 7 pi by 2, minus 10, it's like this. Okay, so from point B and D, their x coordinate it's 0.
that is if x is equals to, now we can have a general way, प्लस पाई बाय 2 है, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 है, प्लस और माइनस पाई बाय 2. सेम में yes, here 3 pi by 2 or minus 3 pi by 2. So plus or minus 3 pi by 2 plus or minus 5 pi by 2 plus or minus 7 pi by 2. Yeah, it will go on like this. If x is equals to, then cos x is equals to 0. Okay. ये चीज हम इसको जनरलाइज वे में लिख रहे हैं. अभी जस्ट राइट नाउ वी आर जस्ट राइटिंग लाइक दिस. सेम में हम दो और पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे यूनिट सर्कल पे, पॉइंट ए और सी. 4 पॉइंट्स ए एंड सी. यस, यहां पे हम देखेंगे तो इन दो पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों का ए और सी का y coordinate 0 है. Y coordinate 0 that means point A, the angle subtended by this point, either point A or C at the center of the circle, for all these angles its sign will be 0 because इसका जो y coordinate it represents a sign of an angle subtended by that point at the center. इस तरह से हमने जो पढ़ा है जनरल साइन और कोस का डेफिनेशन. तो यही चीज यहाँ पे है for points A and C, there y coordinate is 0, that is if, और A और C कौन कौन सा एंगल सब्सटेंड करती है, तो यस, that is if x is equals to 0 plus or minus pi plus or minus 2 pi plus or minus 3 pi dash dash dash, then sin x is equals to 0. अब हमको इसको जनरल वे में लिखना है. ओके, तो जनरल वे में हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहां पे एक्चुअली हम देखें तो x की कौन सी वैल्यू के लिए cos 0 होता है, दैट मींस ये हम ग्रेडियंट टर्म्स में ही समझेंगे और डिग्री का ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट कर पाओगे 180 से, पाई को 180 को रिप्लेस करके. बट जो भी स्टडीज है जनरली हम रेडियन में ही जाएंगे. तो यहाँ पे ये चीज हम समझते हैं, ये चीज यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू के लिए प्लस और माइनस पाई बाय 2 प्लस और माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस और माइनस पाई, दैट मींस यहाँ पे हर एक में पाई बाय 2 आता है, लेकिन पाई बाय 2 का कैसा मल्टीपल, तो के ऑड मल्टीपल. सो पाई बाय 2 इंटू 1, पाई बाय 2 इंटू 3, पाई बाय 2 इंटू 5 एंड पाई बाय 2 इंटू 7. दैट मींस जब भी एंगल पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा उस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी. सो वी कैन राइट हियर इन जनरल, yes, cos x is equals to 0 if x is equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z. yes, यहाँ पे n कोई भी इंटीजर है, n is equals to 0 रखोगे तो pi by 2 मिलेगा, n is equals to 1 लिखोगे तो 3 pi by 2 मिलेगा, n is equals to minus 1 लिखोगे तो minus pi by 2 मिलेगा, और इस तरह से आपको और सब वैल्यू भी मिलेगी. यस, यू कैन हैव ऑल दिस वैल्यूज, इवन माइनस 2 लिखोगे माइनस 3 पाई बाय 2, ऑल दिस फॉर ऑल दिस वैल्यूज कॉस की वैल्यू 0. सिमिलरली साइन की वैल्यू, कौन से x के लिए साइन की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये x इज इक्वल टू 0 पाई प्लस और माइनस पाई प्लस और माइनस 2 पाई प्लस और माइनस 3 पाई. दैट मीन्स हियर दे आर द मल्टीपल ऑफ पाई. दैट मीन्स 0 पाई, 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई. यस, इसमें पाई बाय 2 के और मल्टीपल, यहाँ पे पाई के ऑल मल्टीपल्स, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, उस सब वैल्यू के लिए साइन 0 होगा. ओके, सो इन जनरल cos x इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी. उसी तरह से sin x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z. ये आपको याद रखना है. ये these are also called zeros of cos and sin. That means x की कौन सी वैल्यू के लिए. और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है हमको, अगर कुछ मेंशन नहीं, कोई यूनिट हमने मेंशन नहीं किया है तो वी शुड कंसिडर एट इट एज अ रेडियन ओनली, क्योंकि वो हमारा कन्वेंशन है. हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो हमको रेडियन ही समझना है.
अगर इट इज अ डिग्री तो डिग्री का हमको जो यूनिट है वो मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड एज अ रेडियन। सो जब कभी भी x यानी कि एंगल सबटेंडेड विल बी इन द मल्टीपल ऑफ दैट मीन्स 2n+1 π/2 बिलोंग्स टू z, उन सब x के लिए cos की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। और जब x इज इक्वल टू n बाई रेडियंस होगा, n बिलोंग्स टू z, उन सब x के लिए साइन की वैल्यू 0 होगी। ये और दीज आर कॉल्ड जीरोस ऑफ साइन एंड कॉस, जो जिस वैल्यू के लिए साइन और कॉस 0 होता है उसको ये कहा जाता है। ये याद रखना है। सो यहाँ पे आज हमने दो चीजें देखी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनका हमको बहुत यूज भी करना है। दो चीजों में क्या है, तो एक हमने पढ़ा cos 2n pi plus x is equals to cos x n belongs to z and sin 2n pi plus x is equals to sin x is equals n belongs to z। इसका यूज करके मैंने आपको दिखाया। तो हमने सम साइन और cos की कोई भी बड़े एंगल की वैल्यू के लिए हम साइन और cos फाइंड कर सकते हैं, वो चीज हुआ। इसके अलावा cos और साइन 0 कब होंगे, x के कौन सा वैल्यू के लिए cos x और sin x 0 से, वो हमने जनरल फॉर्म में देखा। और इन दोनों का यूज करके मैं बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम उसको जनरलाइज वे में एक्सप्रेस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज ये भी समझेंगे, यहाँ पे यूनिट सर्कल पे जो भी पॉइंट है उन सब पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस एंगल का कॉस, वाई कोऑर्डिनेट उस एंगल का साइन। दैट मीन्स यहाँ पे, और ये जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, वी कैन हैव एज मेनी रोटेशन एज पॉसिबल, कितने भी रोटेशन हम इनफाइनाइट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज। दैट मीन्स हमारे पास ये सारे जो एंगल की वैल्यूज आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट करते हैं तो ऑल दीज आर पॉजिटिव एंगल्स, ओके। और इनफाइनाइट करते हैं मीन्स बहुत सारे रिवोल्यूशन कर रहे हैं तो बहुत सारे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दैट मींस इट विल बी क्वाइट लार्जर वैल्यू वी कैन हैव। सेम में यहाँ पे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू होगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट वी कैन हैव एज मेनी मूवमेंट एज पॉसिबल, एज मेनी रिवोल्यूशंस एज पॉसिबल हम कर सकते हैं। सो उसके साथ ऑल नेगेटिव वैल्यूज एसोसिएटेड होगी, यानी एज मेनी रियल नेगेटिव वैल्यूज वो भी उसके साथ एसोसिएट होगी, और 0 से बिगिन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल सबटेंड है वो कोई भी रियल नंबर होगा, इसका मतलब। और इन सबके लिए कोई भी एक रियल नंबर का एंगल होगा, और उसके लिए क्या होगा, एक यूनिक पॉइंट हमारे पास यूनिट सर्कल में मिलेगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी डिफाइन होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी डिफाइन होगा। दैट मीन्स उसका उस एंगल के लिए कॉस और साइन भी डिफाइन होगा। दैट मीन्स कॉस और साइन एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यहाँ पे 0 नहीं, कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड है वो हमको फाइंड करना है, तो वो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए वो डिफाइंड है। उसमें से इन दो वैल्यू पे एक्स की ये वैल्यूज पे x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 में cos 0 होगा, और x की वैल्यू n पाई के मल्टीपल में होगी तो वहां पे साइन 0 होगा। ये उसमें से हमने अलग किया है। बाकी x की इन जनरल कोई भी रियल वैल्यू होगी तो उसके लिए हम cos और साइन की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी रियल रोटेशन के लिए, रियल नंबर ऑफ रोटेशंस इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए हमको एक यूनिक पॉइंट यूनिट सर्कल पे मिलेगा। और एक यूनिट सर्कल पॉइंट मेरे को यूनिट सर्कल पे मिल रहा है तो उसके साथ मेरे जो cos और साइन एसोसिएटेड है वो भी मुझे मिलेंगे ही। सो यहाँ पे cos और साइन किसी भी रियल नंबर के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट मेरे को यस दिखा है, इसके बाद में आपको आज का लेक्चर में कंक्लूड करूंगा। देखा कि cos x is equals to 0 if x is equals to 2n+1 π/2 n belongs to z n, sin x is equals to 0 if x is equals to n pi n belongs to z। ओके, नाउ ये चीज हमने देखी थी ना। अब यहाँ पे जो मेरे को लिखना है रेस्ट या रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यस, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम tan वगैरह देखेंगे। यस, tan cot वगैरह इसके ऊपर से डिफाइन हुआ है, तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना है tan x। tan x क्या है, तो वो sin x अपन cos x, इसका रेशियो है।
नाउ हमें इसको थोड़ा आगे जाना, वी विल हैव टू गो फर्दर। किस तरह से? हमको पता है कि जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 रेडियन n बिलोंग्स टू z पाई बाय 2 ये रेडियन होगी x की वैल्यू, तब cos की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे 10x वो sin x अपन cos x है, तो जब जब cos की वैल्यू 0 होगी तो 10 अनडिफाइंड होगा। दैट मीन्स ये वैल्यू मेरे को एक्सक्लूड करनी पड़ेगी जिसके लिए 10 डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे मैं 10x अगर को डिफाइन करा, 10x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ sin x एंड cos x, वेयर आई विल हैव टू add condition where x is not equals to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z। ये लिखने का रीजन क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जब ये रेडियंस होगी 2n plus 1 pi by 2, तब इसका डिनोमिनेटर cos वो 0 होगा, ये 0 होगा। 1 by 0 इट इज नॉट डिफाइंड टर्म, या कोई भी नंबर, एनी नंबर, yes any you can just say xyz number divided by 0 is not डिफाइंड। तो जब जब cos की वैल्यू जिस x के लिए cos की वैल्यू 0 होगी उसके लिए 10 डिफाइन होगा नहीं। नाउ यहाँ पे हम जनरल टर्म में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, दैट मींस वी आर लर्निंग ऑल दिस इन अ ब्रॉडर टर्म्स। ओके, जो एंगल्स है वो हमने एक्यूट एंगल से बड़ा कर दिए, 90 डिग्री से बड़े कर दिए हैं, उन सब के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके इसलिए ये सारी चीजें हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ये बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इन अ जनरल वे हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू cos x, दैट इज ट्रू, बट फॉर दिस वैल्यू। इसके अलावा जो भी वैल्यू होगा उसके लिए 10 डिफाइन होगा। सेम में बाकी का रेस्ट इज इजी, अगर ये समझ आ जाता है तो cot x क्या है, तो cos x अपन sin x, अगेन इट्स अ रेशियो ऑफ cos एंड sin। तो यहाँ पे जिस x की वैल्यू के लिए sin 0 होगा उस वैल्यू के लिए cot डिफाइन होगा नहीं, बिकॉज उसके लिए x by 0 इस तरह का टर्म होगा, वो अनडिफाइंड कहा जाता है, तो cot x भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन रखेंगे वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई n बिलोंग्स टू z। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ये चीज समझ में बाकी की सब चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। और इसके ऊपर सबने सीखा है सेम में sec x क्या है, तो cos का रेसिप्रोकल दैट इज 1 अपन cos x। नाउ यहाँ पे भी या cos x का रेसिप्रोकल, दैट मींस जब cos की वैल्यू 0 होगी तब sec डिफाइन होगा नहीं, तो ये मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसके लिए sec डिफाइन होगा नहीं। तो जिस चीजों के लिए sec डिफाइन नहीं होगा हम उसको बाहर निकाल देते हैं। वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, और लास्ट cosec x is equals to 1 अपन sin x, वेयर यहाँ पे sin 0 नहीं होना चाहिए, x is not equals to n pi n belongs to z। जिस वैल्यू के लिए sin 0 होगा वो एक्सक्लूड किया है। ये जस्ट ये जनरलाइज टर्म में हम सीख रहे हैं। ये इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, not only acute angle or a less than 90 degree, but all these things are applicable for any value of x। क्या वही चीज वही हमारा इंटेंशन है। सो दैट इज व्हाई वी आर जस्ट लर्निंग लाइक दिस। सो फॉर टुडे दैट्स इट, इतना ही काफी है। नेक्स्ट मैं उसमें भी थोड़ा आगे बताऊंगा। हियर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके कॉमन एंगल की वैल्यूज और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस की साइंस, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक दो कंसेप्ट है वो सीख के जो रियल पढ़ना है वो देखेंगे, लेकिन उन सब में ये सारी चीजें जो हम लर्न कर रहे हैं वो सारी चीजों का यूज आता है। दैट इज व्हाई जस्ट वी आर लर्निंग ऑल दिस। ओके, आज का इतना ही। ओके, दैट्स इट।